इन यूपीएससी प्रीलिम्स यू हैव टू टेक रिस्क एंड इंटेलेक्चुअली ये चीज हमें समझ आती है, बट ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमें ये समझना कि रिस्क लेके हमको एक आउटकम चाहिए, तो दैट रिस्क कैन ऑल्सो बैकफायर, दैट रिस्क कैन बैकफायर ऑन यू. हाउ मेनी ऑफ यू हैव समवेयर और द अदर फेल्ट कि 50-50 वाले जो अटेम्प्ट अगर मैं करता हूं, दैट I've eliminated two options, I'm choosing between two, I get all of them wrong? Yes or no? Let me know in the comments. Because if you're doing that, that means that you took a risk and that risk did not work out for you. But does that mean that I stopped taking risk? No. On the other hand, we should look at how we are taking risk. We should look at good risk versus bad risk. कहाँ रिस्क हमें लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स में हमें ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स में हमें कम रिस्क लेना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस में रिस्क लो मत लो, किस टाइप के एलिमिनेशन करो ना करो. All of these things we are going to be discussing in today's video. Risk and reward in UPSC prelims. These are three options that are available to you whenever you're giving UPSC prelims or any MCQ type test for that matter. You can mark an answer, right, or you can leave it to mark later. And the third option that you have is always skip. This is a strategic choice. Skip is something that is very very useful for you, and ये आपका related है risk से. We need to learn which questions to skip. We need to learn where we should strategically use this. So let's get started. Now सबसे पहले just studying doesn't give you prelims का clear करने का guarantee. You have to take some risk. रिस्क कहाँ है? आफ्टर यू अटेम्प्टेड 30 to 35 क्वेश्चंस. दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि अगर कोई प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करके जा रहा है तो इतने क्वेश्चंस वो शॉर्ट कर सकता है. अगर टफ पेपर है तो मे बी दिस गोज डाउन टू 25. इफ इट्स एन ईजी पेपर मे बी दिस गोज अप टू 40-45. बट nobody really attempts all 100 questions knowing all of them beforehand. So this is where it comes to the idea of risk. तो हमें करना क्या है? प्रीलिम्स essentially is a test of your decision making ability. कि भाई प्रेशर में, टाइम क्रंच में, जब आपको लेट्स से ऐसा न्यूक्लियर ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई इन दोनों में से कुछ चूज करना है एंड देयर आर नो गुड चॉइसेस, व्हाट डू यू डू? एंड बिकॉज आफ्टर 30 to 35 everyone is in the same boat, so then the idea is to take some calculated risk. Now good risk और bad risk के बारे में थोड़ी बात करते हैं. Good risk क्या है? Where my ability to score well goes up with the risk that I take. Bad risk is my ability to score up goes down as I take more risk. Bad risk कैसा है? जब मैं तुक्के मारने लग जाता हूं. Bad risk कैसा है? When I keep this sort of an idea in my head कि I must attempt 85 questions, I must attempt 90 questions क्योंकि उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि टॉपर वीडियो में सुना था तो करना ही करना है. This is bad risk. You should assess. जब पेपर में बैठे हो तो भाई पेपर आसान है, sure, attempt 95 questions. But paper tough है तो reduce the number of questions that you're attempting. अब paper tough है या easy है, this is something that you will have to decide on the day of the exam hall में बैठ के. कैसे होगा ये? एक बार पूरा पेपर पढ़ो, go through this entire prelims का paper, and that is where the idea of attempting the paper in rounds comes in. Now attempting the paper in rounds is a way to reduce risk. क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन 1 to 100 जा रहे हो पेपर में, you're not going to get any extra marks, but you are probably going to discourage yourself and feel dejected. क्यों? Think of it in this manner कि आपने पेपर में बैठ के आप पूरे साल तैयारी करके आए हो and suddenly the first 10 questions that you see are questions जो कि बाउंसर हैं, सर के ऊपर से निकल जा रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या ही पूछ लिया. And tell me if this has happened with you in any of the previous attempts, if you've given, और अगर आपने PYQs देखे हैं तो मे बी कि आप पेपर खोलते हो और पहले 10 सवाल जो हैं वो मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं. इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज दैट विल लेट अदर्स आल्सो नो कि दिस इज वेरी पॉसिबल. तो दिस इज बैड रिस्क. दिस इज बैड रिस्क बिकॉज मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है 1 to 100 अटेम्प्ट करके. ऑन द अदर हैंड, इफ आई अटेम्प्ट इन राउंड्स, व्हाट डू आई डू? आई स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस. अगर 1 to 10 मुझे इजी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, मैं 100 to 1 शुरू कर दूंगा, मैं 50 to 100 शुरू कर दूंगा. आई विल ट्राई एंड मूव एनीवेयर इन ऑर्डर टू फाइंड दोज इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट? बिकॉज इजी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम. Easy questions are just spread out across the paper, and because of that,
It is your job to find them, which means going from 1 to 100 is a bad risk. बिना बात के ये बोलना कि नहीं मुझे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं इज अगेन अ बैड रिस्क. क्यों? क्योंकि जब हमने इजी क्वेश्चंस अपने राउंड वाले सिस्टम से कर लिए हैं, तो लेट अस से दैट फर्स्ट राउंड में आई एम ओनली डूइंग द इजी क्वेश्चंस, and in the first round I'm able to attempt 30 questions. That means it's a average difficulty paper, right? But अगर first round में मैं सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन कर पाता हूं, that means it's a hard paper. And in such a case, should I increase or decrease this number of attempt? And एक alternative कि भाई यहाँ पे instead of 30 I am able to attempt 45 questions, which probably means that it's an easy paper. So in such a case, शुड आई इंक्रीज और डिक्रीज दिस? तो ये एक फिक्स्ड आइडिया लेके कि नहीं 80 90 वट एवर नंबर करना ही करना है इज नॉट अ गुड रिस्क टू टेक. क्योंकि रिस्क को हमें समझना है. रिस्क का मतलब ये नहीं है कि यू नो जस्ट आई कीप अटेम्प्टिंग मोर एंड आई विल गेट मोर मार्क्स. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. द मोर रिस्क यू टेक, the probability of success or failure changes, right? This is what is known as the bell curve. Bell curve आप लोगों ने वैसे देखा होगा. It is generally like this. This is what is known as the normal distribution. Normal distribution के बारे में मैं कई बार पहले भी बात करता हूँ. The idea is कि on any given event, probability of success generally यहाँ पे middle में सबसे ज़्यादा होती है. आउटलायर्स हमेशा बहुत कम रहते हैं. तो रिस्क के साथ भी यही चीज यहां पे हो रही है. द मोर रिस्क आई एम टेकिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज रिजल्ट इज दिस. बट ये रिजल्ट भी आता है इस रिस्क के साथ. क्यों? क्योंकि आपने 30 क्वेश्चंस रिस्क लेके अटेम्प्ट किए, 30 के 30 गलत हो गए. पॉसिबिलिटी है इस चीज की. द एवरेज इज हियर, but the possibility of this exists just like the possibility of somebody तुक्का मार के प्रीलिम्स में 150 ले आए. पॉसिबिलिटी उस चीज की एग्जिस्ट करती है. बट दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट रिस्क. एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ fear of negative marking in prelims is that हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं. और अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं कब? जब हमने 2 ऑप्शन अपने एलिमिनेट कर लिए हैं. इफ यू हैव 4 ऑप्शंस जिसको आप 2 ऑप्शंस में कन्वर्ट कर पाते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो दिस इज एन एरिया वेयर यू शुड डेफिनेटली टेक अ रिस्क. बिकॉज द रियल रिस्क इन लाइफ in prelims is when you are not taking any risk at all. क्योंकि बिना रिस्क के आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे. बिना रिस्क के आप मे बी वो 30 to 35 क्वेश्चंस करेक्ट कर लोगे. 35 क्वेश्चंस लेट अस से दैट यू हैव डन करेक्टली, दैट इज 70 मार्क्स. दैट इज नोवेयर नियर द कट ऑफ. लास्ट ईयर का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 95 गया है, अगर हायर साइड का थोड़ा एस्टिमेट लेके चले तो 95 के आसपास नहीं है ये. हमें और क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस हमें आते नहीं हैं. तो ये गलतियां ना करें कि 2 ऑप्शन जब मैंने एलिमिनेट कर दिए वहां रिस्क लेना बनता है. पुअर क्वेश्चन सिलेक्शन, 1 to 100 क्वेश्चन मत करो. इजी क्वेश्चंस को ढूंढो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना. क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन ऐसे देख के कि भाई माइंड ब्लास्ट हो गया आपका खुद से कॉन्फिडेंस गिर जाएगा इन द एग्जाम. क्योंकि अब आपको बार बार यही सवाल आता रहेगा कि यार ये 10 क्वेश्चन तो हुए नहीं, पास होगा क्या. उस मोमेंट में अपने आप को ये याद दिलाना कि अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैंने 1 साल तैयारी करी है, तो सबके लिए डिफिकल्ट होंगे. दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू व्हेन यू आर लूजिंग फेथ, राइट? एंड फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग से कम अटेम्प्ट नहीं करने हैं. अटेम्प्ट हमें थोड़े और क्वेश्चंस करने हैं, बट अगेन डोंट हैव अ फिक्स्ड नंबर इन योर हेड. प्रीलिम्स में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इट इज मोर अबाउट टेकिंग इंटेलिजेंट रिस्क. इंटेलिजेंट रिस्क किस चीज को बोलेंगे हम? कि आपको डेप्थ में नहीं जाना है. बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई करंट अफेयर्स की डेप्थ में चले जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डिटेल हम पढ़ने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम करने लग जाएंगे. या सब्जेक्ट्स को हम उस तरीके से ले लेते हैं कि डेप्थ कैसे हो जाती है कि भाई एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में क्वेश्चंस आए थे, तो अब मैं क्या करने लग गया हूँ, मैं बहुत सारी स्पीशीज़ की डेप्थ में जाके पढ़ रहा हूँ कि भाई which bird is doing what. Like for example, the Prime Minister released a book called Birds of Bunny Grassland. एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी बर्ड्स ऑफ बन्नी ग्रासलैंड के बारे में डेप्थ में जाके पढ़ रहा हूँ. वेस्ट ऑफ टाइम. ऑन द अदर हैंड,
instead of depth, if I talk about width, right? Width क्या है? When I'm trying to connect different topics and interrelate them with other ideas. Like for example, अभी जैसे हमने बात करी, Birds of Bunny Grassland is a book that the Prime Minister recently released. सारी birds उसमें से पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है. But again, if there are some birds which are on the IUCN Red List, which are critically endangered in that area, I should look at them, right? I should also look at कि बन्नी ग्रासलैंड्स में और कौन कौन सी मेगाफोना स्पीशीज हैं या फ्लैगशिप स्पीशीज है. इससे क्या हो रहा है, मैं स्प्रेड आउट कर रहा हूं अपनी इंफॉर्मेशन को, ताकि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिले एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का. एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट इन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में विड्थ ऑफ नॉलेज इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन डेप्थ. डेप्थ का थोड़ा यूज आपको मेंस में आएगा, बट डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज. टिल देन, width of knowledge, breadth of knowledge is the most important part for you, right? So wide knowledge का क्या मतलब होता है? Wide knowledge से we increase our chances to eliminate options. Increase our chances क्या कि अब जैसे बन्नी ग्रासलैंड्स वाली किताब हमने पढ़ी तो मैंने 2-4 चिड़ियाओं के नाम देख लिए. बिकॉज ऑफ दैट चिड़िया से रिलेटेड कुछ सवाल आया, मे बी आई एम एबल टू एलिमिनेट समथिंग. But if I spend 5 days reading that entire list, memorizing that entire list, that is going to be wasted effort. क्यों? क्योंकि देखो, एंड में इसी तरीके के दो मेजर चॉइसेस आपके पास रहेंगे. आइदर you are at a position where you are choosing between all 4 options, you have not been able to eliminate anything, और आप यहां पे आ गए हो दो ऑप्शंस में 50% सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंट जहां पे मुझे 4 ऑप्शंस में से चूज करना है. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एलिमिनेट समथिंग. मे बी आई कैन एलिमिनेट बेस्ड ऑन रीडिंग क्या क्या चीजें हो रही हैं, but I am choosing between one of 4 options and therefore there is no scope of elimination. On the other hand, these kinds of questions जहाँ पे ऐसे options मुझे मिलते हैं, and now even in 2024 prelims we saw कि भाई इस तरीके के या फिर आपके जो assertion reason वाले questions होते हैं, ये questions काफ़ी आते हैं. यहाँ पे if I can eliminate one choice, I can eliminate some options, and then therefore having reduced कि भाई मुझे इन चारों में से नहीं, मुझे ए और डी में से ही चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ चॉइस बिटवीन 50% प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस. एंड इसके बारे में एक बार समझते हैं थोड़ा कि भाई अगर 25% प्रोबेबिलिटी है मेरी, 25% क्या है? आई एम चूजिंग 1 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस. सो लेट्स से मैं तुक्का मार रहा हूं, मैंने 20 क्वेश्चंस पे तुक्का मारा, 20 क्वेश्चंस पे मैंने तुक्का मारा, तो मेरे 1/4 अंदाजे से सही होने चाहिए. मीनिंग आई शुड गेट 5 क्वेश्चंस करेक्ट एंड आई विल गेट 15 क्वेश्चंस रॉन्ग, राइट? 5 क्वेश्चंस करेक्ट इनटू 2 मार्क्स, आई गेट 10, एंड 15 इनटू -2/3, ये आपका हो जाएगा -10. तो इफेक्टिवली इन दिस केस मैं नेट 0 पे हूं. +10 -10, आई एम नॉट गेटिंग एनी बोनस मार्क्स फॉर टेकिंग एनी रिस्क. अगर मैंने ये 25% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे तुक्का भी मारा, तो आई विल हैव टू डू मोर देन 20 क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू एंड अप पॉजिटिव, विच इज नॉट अ वेरी गुड रिस्क टू टेक. बट लेट्स टॉक अबाउट कि भाई अगर मैं 50% प्रोबेबिलिटी पे आ जाता हूं कि मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, एंड नाउ आई हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ 2 ऑप्शंस. नाउ लुक एट द डिफरेंस कि अब 20 क्वेश्चंस में से लेट्स से हाफ ऑफ देम आई विल एंड अप डूइंग करेक्ट. Right, half of them I will end up doing correct and half of them I will end up marking wrong. So this will be plus 20 marks and this will be minus 6.67. तो roughly आपका बन जाएगा total plus 13 something marks. This is good risk. This here is good risk. Why? Because at least I am gaining something out of it, and that is what I want to tell you कि there should be a probability कि भाई अगर मैं ये रिस्क लेता हूं, 20 क्वेश्चन मैं करता हूं जहां पे मैं सिर्फ 2 ऑप्शन में से एलिमिनेट कर पा रहा हूं, I should mark those questions and not worry about half of them being wrong. क्योंकि irrespective of the fact that आपने चाहा तो था कि मतलब सारे सही हो जाए, but probability suggests, क्योंकि मैं 50% पे से मार्क कर रहा था, सही आंसर मुझे पता होता तो ये सही होता, बट तुक्का मारा है, 2 चॉइस में से एक चूज करके 20 क्वेश्चन पे आई विल गेट सम 13 मार्क्स. इज दिस एग्जैक्टली नॉट व्हाट वी वांटेड कि भाई 70 के आसपास हम पहुंच गए हैं. अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई 30 से 35 क्वेश्चंस
हम 50% प्रोबेबिलिटी पे खेल पाए, एंड दैट इज वेयर आई इंक्रीज माई चांसेस ऑफ सक्सेस. कमिंग टू विच सब्जेक्ट्स यू शुड टेक मोर रिस्क इन, दीज आर द कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स. कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा रिस्क लेना है, जहां पे बार बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी. मॉडर्न हिस्ट्री को फैक्चुअल कंसेप्चुअल में मिक्स आप कर सकते हो, बट मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार आपको कहानी समझ आ गई, मोस्ट ऑफ द टाइम you can attempt these questions. Taking some risk is important, and these are the subjects that you should take that risk in. On the other hand, these are the subjects which are more factual, right? These are more factual subjects, and this is where you should avoid risk. क्योंकि अगर environment में मैं बिना बात का risk लेने की कोशिश करता हूं, तो there is a lot of technical small scale definitions यहाँ पे होती हैं, and उनके चक्कर में मुझे लगेगा मैं सही कर रहा हूं, बट आई विल एंड अप मार्किंग द रॉन्ग थिंग. सिमिलरली एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, रिड्यूस रिस्क. नहीं आता तो तुक्का मत मारो, आगे चलो. साइंस एंड टेक में मे बी शायद तुक्का मार लेना. एंड सिमिलरली करंट अफेयर्स, इफ यू हैव नॉट रेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इफ यू हैव नॉट रेड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ट्राई एंड स्किप करंट अफेयर्स एज मच एज यू कैन. प्रीलिम्स में जो 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आई कैन मार्क दिस क्वेश्चन राइट नाउ, आई कैन मार्क दिस लेटर, और आई कैन स्किप. So in these subjects, ये दोनों ऑप्शन आप ज्यादा यूज करो, एंड इन द प्रीवियस सेट यहां पे मार्क एंड मार्क लेटर, ये वाले 2 ऑप्शंस आप ज्यादा यूज करो, because that is how you are going to optimize the amount of risk that you're taking in prelims. Now let's look at some questions जो कि for example this is a question from economy. अगर आपने बेसिक सप्लाई एंड डिमांड के समझ लिए हैं, कुछ ना कुछ आप करके, सारी चीजें भी अगर आपको नहीं समझ आ रही, कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाओगे. गुड प्लेस टू टेक अ रिस्क. सिमिलरली फ्रॉम पॉलिटी, something or the other you will be able to do, some option you'll be able to eliminate, you'll be able to make some progress. Geography, अब यहाँ पे even though these kinds of options हैं, right, these are the kinds of options where we generally should avoid risk, but because it is geography and because थोड़ा अगर आपको ज्योग्राफी का सेंस है, यू शुड बी एबल टू डू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. तो सब्जेक्ट में भी इस टाइप के ऑप्शंस को लेके आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज समथिंग टू डू विद पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी. एनवायरमेंट में अगर ये टाइप का ऑप्शन है, क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है, स्किप शुड बी योर प्राइमरी चॉइस ऑफ एक्शन. सिमिलरली स्किपिंग के लिए अगर देखें तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर देखने के लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है, बट when I try to do this, if I don't know this, I will most likely get it wrong, because the answer is not the one that you would ever think is the correct answer over here. And similarly for Coben carbon metric, कि अगर मैं logically सोचने की कोशिश करूं तो I will never come to the right answer, because this is a very very factual question, right? So similarly for sometimes economy में भी इस तरीके के questions आएंगे which are very factual. यहां पे सीधा आपसे पूछा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, कि भाई रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कौन यूज करता है, पता है, वेल एंड गुड, यहां पे गेस नहीं कर पाओगे. तो दैट्स व्हाई ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इन फैक्चुअल क्वेश्चंस, इवन इन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यू कैन स्किप टू अवॉइड रिस्क. एंड सिमिलरली इवन इन पॉलिटी देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू कैन स्किप, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट 71st अमेंडमेंट 1992 में कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई थी. ऑप्शंस आर टेलिंग मी दैट ओनली वन ऑफ देम इज रॉन्ग, बट इतना डिटेल में मैं पॉलिटी नहीं पढ़ता हूं कि जाके मैं कौन सी लैंग्वेज कब इंक्लूड हुई थी ये बस देखता रहूं, क्योंकि दैट इज अ जनरल वेस्ट ऑफ टाइम. तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ स्किपिंग, राइट? सो दिस इज वेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम इन हैंडी. तो लास्ट 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको करने चाहिए, एंड वी हैव आल्सो मेड वीडियोस हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट themes from these last 12 years PYQs. You can check out those videos. These are the recent videos that we've made. The idea is we want to recognize the repeated themes. You want to understand how UPSC is framing questions. UPSC के सोचने का पैटर्न अगर आपको थोड़ा समझ आता है, लैंग्वेज अगर आप बार बार देखते हो, it becomes easier for you during the actual exam, because then you are not scared of कि अच्छा क्या पूछ लेंगे, कैसे पूछ लेंगे. Similarly, you have to develop your own intuition. तो जैसे ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, this question from geography, if you have developed your intuition about geography, so you will know
that nitrogen and sulfur, even if I am not sure that they are coming out of volcanic eruptions, they might, right? मेरा इंट्यूशन इतना कहता है सब्जेक्ट के बारे में कि कोई ना कोई पत्थर वहां पे जल जाएगा, कोई ना कोई लावा में, मैग्मा में सल्फर और नाइट्रोजन निकल ही जाएगा, तो आई विल मार्क all four of them, right? So this is what it means to develop the intuition of the subject, and for that previous year questions at least last 12 साल के, अगर आपके पास और टाइम है तो go back to 20 years, ये जरूर करो. At the same time solve at least 10 full length tests. मॉक टेस्ट देना जरूरी है. मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है? क्योंकि यू हैव टू कम ओवरकम योर फियर ऑफ द अननोन क्वेश्चंस. बहुत बार क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी एंड से कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आसानी से हो जाते हैं बट मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव मॉक टेस्ट. बट नो, दैट इज नॉट व्हाट इट इज. क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ग्रेट, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यूपीएससी इज थिंकिंग एंड फ्रेमिंग क्वेश्चंस, but they are most probably not going to repeat the same questions. So therefore we need to start thinking in other terms. We need to start looking at failure in mock tests as a means to building our success in the actual exam. And you need to keep experimenting during the mocks. क्या experiment? Simple experiments like कितने questions मैं attempt करूं. डोंट बी फिक्सेटेड ऑन क्योंकि किसी टॉपर ने आपको बोल दिया था कि 65 क्वेश्चन करने हैं, 95 करने हैं. व्हाट वर्क्स फॉर यू? आर यू समबडी हु हैज हाई एक्यूरेसी? आर यू समबडी हु हैज लो एक्यूरेसी? उस चीज के हिसाब से देखो कि कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए. अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आई हैव नोन पीपल हु अटेम्प्टेड ओनली 60 क्वेश्चंस एंड गॉट 55 ऑफ देम करेक्ट. And I have known people who attempt 98, 99 questions every year. और मतलब ठीक है, कट ऑफ क्लियर करते हैं, but that's the idea कि everybody has a different method, everybody has a different risk appetite. Spend time finding your risk appetite. Then measure your efficiency. कि efficiency का मतलब ये नहीं कि मुझे बस let's say I have done 80 questions तो then I should have a 60% accuracy across all of them. No. 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में probably my accuracy should be as high as 90%. On the other hand, in factual questions, if my accuracy is even 50%, I should be more than happy, right? Because I cannot remember all the facts. But the concept, if I'm making a mistake here, then I'm getting out of the race. तो efficiency आपकी इस तरीके से measure करो so that 80 क्वेश्चंस में लेट्स से अगर 50 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे तो ये 90% एक्यूरेसी पे होने चाहिए, एंड बाकी जो 30 क्वेश्चंस थे, इवन इफ यू आर डूइंग एट 50% एक्यूरेसी, मोर देन हैप्पी. अगर यहां पे बहुत सिंपल सी चीज रखो, 80 में से सिर्फ 30 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे एंड 50 क्वेश्चंस फैक्चुअल थे, सो देन दैट इज द सेम केस फॉर एवरीबडी. Everybody is going to lose out in that particular case. Another thing that you can do with your mocks is simulate real conditions. Prelims जब आपका होगा, that will be peak of summers in north of India. A lot of heat is going to be there. Your exam center might run out of electricity. There might not be any fans. There might be a lot of construction going on right there. In all of these conditions, लेटर ऑन आप यूपीएससी को जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते. इट इज अनफेयर, इट इज नॉट गुड, बट अगेन इट इज व्हाट इट इज. एंड देयरफॉर ऑफलाइन सेंटर्स में जो जो प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड सिमुलेट देम इन योर मॉक टेस्ट. बिना पंखे के बैठो, पेपर दे के देखो, मे बी you'll learn something out of it. Finally, please keep in mind that one of the biggest risks that you're taking with this exam is that I'm studying too hard and reducing or deteriorating my mental and physical health. Please ensure exercise and meditate 15 minutes each every day, because सारी मेहनत कर लोगे, उस दिन जाके स्ट्रेस हो गया, उस दिन जाके पैनिक अटैक आ गया, पिछले दिन रात नहीं आई. This is also a risk that we are taking, and we want to try and minimize that by exercising and meditating daily. 30 minutes का मतलब यहाँ पे ये है 15 to 20 minutes of meditation and 15 to 20 minutes of daily any workout. Go for a walk, get out, get some sun. बेसिक्स करोगे, सही रहोगे, क्योंकि a healthy body will lead to a healthy mind and eventually will help you make better decisions. Right?
So that's all that I wanted to discuss in today's video. If it made sense to you, do let me know in the comments. All the best on your UPSC journey.